Welcome, guys, to today's open discussion. And our topic for today is I want to trust my partner, but I cannot. So, certainly, the topic is linked to romantic relationships, and trust, as we all know, is a very important component of that relationship. So, when it comes to people having trust issues or people who develop trust issues in their relationships, romantic relationships especially. So there's this constant chatter that happens inside our heads a lot of times that, you know, can I really trust this person? Is this person what he or she is saying? Is it she being honest with me? What could be their intentions? Why are they saying it like that? Will they betray me in the future? Will they leave me? Or are they just saying it because they pity me? Or am I being too trusting? Or should I trust even more? Or maybe I should keep my guards up. Maybe I should protect myself, and so on and so forth. So many of these inner chatter, mind chatters, the monkey mind that keeps jumping from one place to another place and bringing these questions forward for us when we are in such a situation. So, we have seen this with so many different people whom we speak to related to relationship challenges that, there comes a point in relationship for many of them where they end up saying the same sentence that I want to trust my partner, I really want to, but I'm not able to. I just cannot. I just cannot trust them. And there could certainly be many different reasons that doubt at a certain point could be rational. And in many ways, in many different ways and angles, it could be really, really irrational, right? So for that, for us to understand that what are these things, what are the deeper dynamics related to different segments creating those trust issues, we are going to take up this topic and discuss the same today. So, all of you here, any of you have, had this question sometime in the past in your life, or maybe currently, anything where this chatter keeps happening in your life that what if this happens? What if, that happens? And trying to anticipate, predict the future outcomes and being really anxious. Have you been in that mode, experienced that thing? Yes, Shweta. Okay. You were you just saying that you have experienced it? Yes. Okay. And would you like to share with us that what was happening with you and what kind of a state of mind, the kind of emotions that you had during that phase in your life? Actually, Anamika, I don't want to discuss here. Okay. Yes. Okay. It was a normal, husband-wife relation, and out of which means like it's 13 years of marriage, and you can think of so पहले ऐसे थे अभी ऐसे नहीं हो, you are not giving me that time, है ना? So Hmm. related to that, so there is something happened, and then I felt कि yes मैं अभी फिर से वही trust पहले वाला नहीं कर सकती. So kind of the thing happened, and that is what. Hmm. Hmm. Right. So there was a situation which kind of broke your trust. Hmm. And after that, it was hard for you to Hmm. rebuild that trust Yes, again. that's where this topic really resonated. Right. Many of the Right. times I say that sentence, and this sentence that I cannot trust you again. So that's Hmm. why I'm here. Hmm. Hmm. And um, I mean, I get it. It's, at times when things happen. So I'm just assuming by how you have spoken that there was something which hurt you, something that actually happened, something that not you were predicting or making up in your mind ki
एक होता है ना हिंदी में जैसे हम बोलते हैं शक करना, डाउटिंग द अदर पर्सन. सो आई एम जस्ट अज्यूमिंग बाय व्हाट यू आर शेयरिंग कि ऐसी कोई चीज हुई होगी, नॉट इट्स नॉट जस्ट दैट डाउट काइंड ऑफ थिंग. Yes. Yes, yes. एंड दैट led you to this point. So ऐसा लगता है now, कि इट्स वेरी इजी, ठीक है जाने दो, लीव इट, बट अगेन द सेम थिंग कम्स कि अगर फिर से ऐसे किया है तो आई रियली कैन नॉट ट्रस्ट यू अगेन, लाइक दैट. सो दैट इज द थिंग हैपनिंग. hmm, hmm. But is there any in any way is this doubt is helping you or your relationship? Because I know I Of course not. understand that theme. No, Hmm. it is not helping. Because it's required to get the any kind of a relation, and it's very it's a foundational thing. I really mean it. It's very basic thing to have the trust on your partner, right? Hmm. Hmm. And what is it that you need to build that trust again? That I am not getting. That's why I'm here. You can I'm think and trying to tell heal us. myself, but again the thing is coming. But so I'm really, sometimes I Hmm. feel, नहीं नहीं, sometimes I'm torn. That's why. I think maybe we will just rephrase this question Okay. कि it's not about कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा. So let's not worry about that. Let's not worry कि जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा. तो उस पे नहीं हम बात कर रहे हैं. हम ये पूछ रहे हैं कि ये ट्रस्ट को वापस से लाने के लिए आपको क्या लगता है कि आपको क्या चाहिए. ये भूल जाओ कि आपको मिलेगा या नहीं, वेदर योर हस्बैंड कैन डू इट I और नॉट got डू this इट एंड ऑल दैट, point. वो भूल जाओ. Yes, हाँ. yes, I got this. So, I really don't know. I'm trying to heal myself, and that, but sometimes it is happening कि हाँ मुझे ऐसा लगता है, and so that's it. What can be further done in this regard? So, yes. ओके. सो बेसिकली वो डर को पकड़ के रखना अच्छा लग रहा नहीं. Maybe हाँ. है. हम्म. Yes. हम्म. तो उससे क्या आपको फायदा क्या मिल रहा है, क्या अच्छा लग रहा है उसको पकड़ के. एक्चुअली मैं थोड़ा सा नहीं समझ पा रही हूँ, यानी क्या चाहिए मुझे, काइंड ऑफ आई फील कंफ्यूज बिकॉज अगेन एंड अगेन द सेम थिंग हैपन, एंड आई डोंट थिंक. नहीं, बट अगेन एंड अगेन सेम थिंग हैपन्स और यू थिंक अगेन एंड अगेन सेम थिंग विल हैपन. नहीं हैपन ना, इसीलिए एक तो. बार हुआ ना. एक बार हुआ, लेट्स. तो फिर से अगर आपने वो होता है तो यू लाइक, यानी व्हेन यू नहीं, आर. हम्म एक मिनट मेरे को हम्म समझ लेने दो पहले. हम्म सी दो चीजें हैं यहाँ पे. अब वी डोंट हैव टू गो इन द डिटेल्स ऑफ दैट कि वो क्या हुआ, ठीक है, वो छोड़ देते हैं. हम्म ठीक है. तो हम्म. तो आपको वो बताने की जरूरत नहीं है एंड ऑल दैट, हाँ. हमको वो सुनने की भी जरूरत नहीं, तो दैट्स यस. फाइन. लेट्स से कि कुछ हुआ, ठीक है. यस. हाँ. तो लेट्स नाउ लेट्स गो फॉरवर्ड फ्रॉम देयर कि कुछ हुआ जिससे आपका ट्रस्ट ब्रेक हो गया. हम्म. तो अब यस. दो, यहाँ से आगे दो सिनारियो हैं हम्म कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ किया और मैंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया. हम्म फिर मैंने सॉरी बोला, जो भी है, आई जस्ट सेड कि अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, ये है वो है, ऐसे हम्म करके. एंड यू हम्म यू सेड चलो, यू व्हाट इट. हम्म लेकिन मैंने फिर वो कर दिया फिर से. हम्म हम्म फिर मैंने फिर सॉरी बोला और मैंने फिर कर दिया, फिर मैंने फिर सॉरी बोला, फिर कर दिया. तो ये तो हाँ. एक सिनारियो हो गया. हाँ. और दूसरा सिनारियो है कि मैंने सॉरी बोला और मैंने फिर नहीं किया, यस. लेकिन आप अभी भी उस डर में हो कि शायद मैं कर दूंगा. हाँ, बिकॉज तो दैट आपके केस में कौन सा सिनारियो है. फर्स्ट वाला सिनारियो होने के बाद में द सेकेंड सिनारियो कम ना, तो इसीलिए दैट एक बार फर्स्ट. हुआ तो आपका ट्रस्ट बार बार ब्रेक हुआ है या एक बार ब्रेक हुआ है, दैट्स माय क्वेश्चन. सी जो सिनारियो आपने बताया ना, लाइक दैट, तो पहले ऐसे हुआ,
यहाँ एक बार हम्म, हुआ, फिर सॉरी बोला, फिर से किया, एंड काइंड ऑफ थिंग्स. ओके. एंड द हम्म, सेकेंड सिनेरियो जो है, दैट इज अभी, राइट नाउ ये रियलिटी है. ठीक है, सॉरी एंड अभी नहीं कर रहे, बट हाँ, अगेन पर हो वो सकता तो है. सिचुएशन ही अलग है फिर। पॉसिबिलिटी. हाँ, पॉसिबिलिटी. फिर वो तो सिचुएशन ही अलग है। हाँ. सो वो तो ऐसा, वो तो देन इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक कि बेसिकली द अदर पर्सन इज लाइंग अबाउट देयर इंटेंशंस, और वो बार बार बोलते हैं कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन वो फिर करते हैं। तो एक एक इंग्लिश में एक कहावत है ना, यू यू फूल मी वंस, हम्म. that it's my problem, but if you fool me once, then shame on you. You fool me twice, shame on me. हम्म. हाँ. तो तो आपके केस में तो यू आर गेटिंग फूल्ड अगेन एंड अगेन। तो ये तो, बट. दिस इज नॉट अबाउट ट्रस्ट एनीमोर ना, यू आर बेसिकली चूजिंग टू ट्रस्ट अ पर्सन हु कैन नॉट बी ट्रस्टेड। हम्म. वो मे बी. वो एक फ्रॉग फ्रॉग और स्कॉर्पियन वाली एक कहानी है, वो पता है ना? नहीं. मीन्स. तो एक फ्रॉग और बिच्छू की कहानी होती है, जिसमें वो बिच्छू बोलता है कि मुझको नदी के पार जाना है, बट हाँ. मैं तो पानी में तैर नहीं सकता हूँ। हाँ. हाँ. तो मुझे अपनी पीठ पे बिठा के नदी क्यों नहीं पार करा देते? तो फ्रॉग बोलता है, लेकिन तुम तो बिच्छू हो, तुमने मुझे डंक मार दिया तो मैं मर जाऊंगा। तो स्कॉर्पियन बोलता है कि पागल हो क्या, मैं क्यों तुमको डंक मारूंगा? मैं तुमको डंक मारूंगा तो हम दोनों नहीं डूब जाएंगे? हम्म. तो तो फ्रॉग भी सोचता है, हाँ लॉजिकल बात है, सही बात बोल रहा है। तो अगर ये डंक मारेगा तो ये भी तो डूबेगा। हम्म. तो तो उसको अपनी पीठ पे बिठा लेता है। वो अपनी पीठ पे बिठा के जब वो मिडल ऑफ द रिवर में होता है, तो बिच्छू उसको डंक मार देता है। तो फ्रॉग बोलता है, ये क्या किया तुमने? मेरे को डंक क्यों मार दिया तुमने? तो बोला, तो बिच्छू बोलता है, मैं तो बिच्छू हूँ, ये तो मेरा नेचर है डंक मारने का। तुमने मेरे पे विश्वास किया, ये तुम्हारी गलती है। मैं तो बिच्छू ही हूँ, मैं तो डंक मारूंगा ही। हम्म. तो तो गलतियां इंसान से हो जाती हैं कई बार, राइट? हम्म. कभी हम्म. कभी कोई मिस्टेक हो जाती है, हम्म. और हम उस हम अगर हमने उसको रियलाइज किया है, एंड वी हैव सेड सॉरी एंड ऑल दैट, एंड देन हम्म. वी हैव नॉट रिपीटेड द मिस्टेक, तो वो तो सभी लोगों के साथ होता है। कोई भी, आप भी गलती कर सकते हो, कोई, हाँ. हम्म. राइट? फिर हम्म. आपको वो चीज रियलाइज हुई, आपने सॉरी बोला, एंड यू नेवर मेड अ मिस्टेक अगेन लाइक दैट, तो दैट इज मैच्योर बिहेवियर। हम्म. बट बट अगर आप बस सॉरी इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपको बस अब ये बात खत्म करनी है, और फिर हम्म. आपको वापस से डंक मारना है, तो हाँ. फिर आपके ऊपर विश्वास करके तो मैं ही गलती कर रहा हूं ना। करेक्ट. करेक्ट. क्योंकि बिच्छू का नेचर तो चेंज नहीं होने वाला है ना। So, so how it can be applicable to a relation? सेम वे, आइदर यू लर्न टू लिव विद दैट, हम्म. सो आइदर यू लर्न टू लिव कि दिस इज हाउ इट इज। हम्म. एक्सेप्टेंस. मतलब इसमें फाइट किस बात की है, ये मेरे को जानना है। फाइट किस बात की है? आप या फाइट तो यानी आपको खुद अभी से है पता ना, है कि नहीं, इंटरनली. बट खुद से भी हो कि क्यों, खुद से भी क्यों? मतलब ये तो ऐसा हो गया कि जो फ्रॉग है, उसको बार बार बिच्छू को नदी के पार लेके भी जाना है, वो उसको मना भी नहीं कर रहा है, और वो बिच्छू उसको डंक मार रहा है, तो वो उस बात पे खुद से लड़ाई भी कर रहा है। तो हाँ. क्यों? क्वेश्चन इज क्यों? या तो अगर आपको लेके जाना है नदी के पार और बिच्छू डंक मारेगा, तो आप अगर वो चूज कर रहे हो, तो देन बी ओके विद दैट। अब लड़ाई किस बात की? आप ही तो चूज कर रहे हो उसको अपनी पीठ पे बिठा के ले जाने की। हम्म. तो लड़ाई किस बात की? लड़ाई मन की है, लाइक मन में ही चल रहा है ये सारी चीजें, यानी मन इसकी में वजह से क्यों मुझे ही चल रहा है? परेशानी हो क्योंकि रही है. हाँ, क्योंकि हमें ये लगता है कि वो बिच्छू को रियलाइज कर लेना चाहिए और डंक मारना हम्म. बंद कर देना चाहिए। विच इज नॉट पॉसिबल. तो वो बिच्छू रियलाइज क्यों नहीं कर रहा है कि मुझे इतनी तकलीफ हो रही है? हाँ. मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं तो ये सब कर रही हूँ, तो उसको ये रियलाइज क्यों नहीं हो रहा? मेरी अच्छाई क्यों नहीं दिख रही है, एंड ऑल दैट।
बट इट इज नॉट अबाउट कि बिच्छू को किसी की अच्छाई दिख रही है या नहीं दिख रही है. इट इज नॉट अबाउट कि बिच्छू को फ्रॉग की अच्छाई दिख रही है या नहीं दिख रही है. बिच्छू अपना नेचर नहीं छोड़ पा रहा है. Yes. दिस टू डिफरेंट थिंग्स. हो सकता है कि उसको अच्छाई दिख रही है, बट वो अपनी ही आदत से मजबूर है. आपको लग रहा है कि वो आदत से मजबूर है, इसका मतलब कि उसको मेरी अच्छाई नहीं दिख रही है. उसको दिख रही है अच्छाई, बट वो अपनी आदत से मजबूर है. Yes. तो अब लड़ाई किस बात की है आपकी? I don't have words. हम्म. It's all about the यानी acceptance तो है, लेकिन कि हाँ ऐसा ही स्वभाव है, बट नहीं, ये फिर एक्सेप्टेंस नहीं होता है. इसको एक्सेप्टेंस नहीं बोलते हैं. तो लेट्स नॉट यूज द वर्ड then what? एक्सेप्टेंस एनीवे. Then what? नहीं, वो छोड़ते हैं. वर्ड क्या यूज, वो एक्सेप्टेंस वर्ड मत यूज करो, क्योंकि वो Okay. एक्सेप्टेंस नहीं. क्योंकि अगर आप एक्सेप्टेंस वर्ड यूज करने के बाद लेकिन या बट यूज कर रहे हो तो फिर हाँ. आप समझे नहीं, है ना. तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सेप्टेंस वर्ड मत यूज करो, यानी क्योंकि 100% एक्सेप्टेंस वर्ड acceptance यूज नहीं है. किया तो फिर लेकिन और बट का कोई स्कोप नहीं है ना. Means you are wanting to say कि 100% acceptance नहीं है, that's why don't use acceptance, है ना? एक्सेप्टेंस या तो 100% होती है या नहीं होती है. एक्सेप्टेंस हाँ. इज नॉट प्रोपोर्शनल. सी, ये या तो यस होता है या नो होता है. Right. 50% यस जैसी कोई चीज नहीं होती है, वो स्टिल नो ओनली. आप अगर किसी को हाँ बोलते हो तो पूरी तरह से हाँ बोलते हो. तो एक्सेप्टेंस में कोई परसेंटेजेस नहीं है कि फुल एक्सेप्टेंस या हाफ एक्सेप्टेंस या 25% एक्सेप्टेंस, या वो कैसे मेजर करोगे आप? या तो है या नहीं है. अगर पूरी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं है तो मतलब नहीं है. So what can be done in this scenario? I want to trust, but पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो ना कि ये लड़ाई लड़के आपको क्या मिल रहा है. not complete, like still in a dilemma and kind of यानी ठीक से डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और यानी कोई भी हो, I'm having children and so many of the times I feel I'm not able to take the right decisions because हाँ, because वो of तो this मतलब उसका, हाँ related करेक्ट, to वो the तो उसका children. इम्पैक्ट हो गया कि हाँ. किसकी वजह से वो सब चीजें आगे नहीं. होती हाँ. हैं. हाँ मुझे करेक्ट. ऐसा लगता है कि हाँ 100% मैं ठीक से डिसाइड नहीं कर पाती हूँ. ये होता है हाँ, पर मोस्टली. मैंने जैसे अभी आपको एक फ्रॉग और बिच्छू की स्टोरी जो समझाई है एग्जाम्पल लेके, और अगर आपको वो एग्जाम्पल कनेक्ट हो रहा है और समझ में आ रहा है, तो उसको ऐसे नहीं सुनना है कि मैंने एक स्टोरी बता दी बस आपको. तो मैंने आपकी स्टोरी, आप समझो कि ये स्टोरी में आप दोनों ही हो. ठीक है. तो मैंने स्टोरी जो बताई है वो कोई ऐसे अलग से एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बताई थी. वो स्टोरी इस टॉपिक से ही रिलेटेड स्टोरी बताई है, इसी से डायरेक्टली रिलेटेड वो स्टोरी बताई है. यस यस. तो अगर वो स्टोरी आपको कनेक्ट हो रही है और आपको ये समझ में आ रहा है कि जो बिच्छू है उसका तो नेचर ही है डंक मारने का. हमने दो सिनारियोज लिए कि एक सिनारियो में कोई इंसान गलती करता है, रियलाइज करता है और वो फिर दैट पर्सन स्टॉप्स. हाँ. ठीक है. वो तो हम सभी लोग करते, वो तो आप भी करते होगे, आपसे भी गलती होती होगी, Yes, आप भी yes. सॉरी बोलते होगे एंड ऑल हम्म. दैट, राइट. वो तो एक मैच्योर इंसान हो गया कि जो रियलाइज करता है कि हाँ मैंने ये मिस्टेक की, अभी मेरे को मैं ये नहीं करूं. तो ये तो Yes. एक सिनारियो हो गया. बट आपके केस में वो सिनारियो नहीं है. आपके केस में दूसरा सिनारियो है जिसमें सेम गलती दोबारा दोबारा हो रही है. यानी इसीलिए मैंने रियलाइजेशन आपको नहीं है प्रॉपर. इसलिए मैंने आपको फ्रॉग और बिच्छू की स्टोरी सुनाई, जिसमें Yes. बिच्छू बोल रहा है कि ये तो मेरा नेचर है.
तुम मेरा नेचर नहीं समझ रहे हो तो ये तुम्हारी गलती है। Hmm. So और what can be done? अगर मेरा नेचर समझने के बाद भी तुम मुझे अपनी पीठ पे बिठा के पार कराना चाहते हो नदी, और मैं उसमें डंक मार रहा हूं, तो अब आपकी लड़ाई किस बात की है? अब फ्रॉग जो है वो किस बात से अपसेट हो रहा है? क्योंकि फ्रॉग तो खुद ही डिसाइड कर रहा है कि आई नो Hmm. कि बिच्छू डंक मारेगा, पर मैं फिर Hmm. भी इसको अपनी पीठ पे बिठा के दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। Hmm. तो अब अगर वो बिच्छू उसको डंक मार रहा है तो ये फ्रॉग परेशान क्यों हो रहा है? I got this, Karma. Can you please tell me what next? Like, what can be done in this situation? पहले क्वेश्चन का आंसर तो दो, परेशान क्यों हो I, रहे हो? हाँ तो I told you ना, Pareshan, I am not able to give that proper decisions. I am not able to make decisions related to my children. And नहीं नहीं whenever नहीं there नहीं is a नहीं, वो नहीं, हम्म वो नहीं, वो तो हाँ आगे की बातें हैं। वो तो इससे हाँ रिलेटेड है हाँ कि ये हो रहा है, इसकी वजह से वो हो रहा है। हाँ तो वही मैं आपने पूछ रहा हूं पूछा। यही क्यों हो रहा है? सब जानते समझने के बाद, सब कुछ, सारी सिचुएशन क्लियर होने के बाद भी आप ये अपने आप को क्यों नहीं बता पाते हो कि दिस इज हाउ इट इज? हम्म, नहीं उनका स्वभाव ऐसा ही है ये, दैट यू वांट टू हाँ, टेल मी राइट? हाँ, ये हाँ, और हाँ उससे तो ये चीज उससे का आगे ये एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम्स। एज ए सेड ना कि हाँ वो तो मैंने अभी जान लिया है कि हाँ ऐसे हो सकता है, बट हाँ, है ना, हाँ, यही बोल। तो एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस आएगी, तो एक्सेप्टेंस 100% एक्सेप्टेंस कब आएगी? 100% एक्सेप्टेंस तब आएगी जब आप हम्म ये जानोगे कि उनका ये स्वभाव है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी, और इस प्रॉब्लम की वजह से ये प्रॉब्लम भी होगी। हम्म कि आप जो बोल रहे हो कि मैं डिसीजन नहीं बना पाती हूँ, या बच्चों के ऊपर इफेक्ट आ रहा है, या ये आ रहा है, तो हम्म। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, कि ये तो होगा ही। यू कैनॉट बी पार्शियली थिंकिंग कि मेरे को इस चीज की तो एक्सेप्टेंस है बट उस चीज की एक्सेप्टेंस नहीं है। कैसे? हाँ ये तो ऐसा हो गया कि मैं चीनी खाऊंगा लेकिन मुझे उसका मिठास पसंद नहीं है, मेरी जुबान पे मीठा नहीं आना चाहिए, हम्म, पर मैं चीनी खाऊंगा। तो वो तो लिंक है ना। हाँ वो तो स्वभाव से रिलेटेड, आपके ऊपर जो भी प्रॉब्लम आ रही है, इंपैक्ट आ रहा है, उसके उसके आगे और कॉन्सिक्वेंस आपके सामने आएंगे। आप जब एक्सेप्ट कर रहे हो कि ओके, आई एक्सेप्ट कि ये ऐसा ही है, हम्म ये नेचर है, और इसकी वजह से अब आगे ये प्रॉब्लम्स भी आएंगी, दैट इज फुल एक्सेप्टेंस ना। ओके। तो देन बी ओके विद ऑल दैट, कि ये तो होना ही है। सो इन दिस सिचुएशन आई कैन नॉट एक्सपेक्ट दैट कि हाँ फिर से पहले जैसा ट्रस्ट हो सकता है, इज इट? पहले जैसा व्हाट यू ट्रस्ट वांट? मतलब, पहले जैसा ट्रस्ट का मतलब कुछ है ही नहीं, क्योंकि पहले जैसा ट्रस्ट मतलब क्या? पहले जैसा ट्रस्ट मतलब तो ये हो गया कि फ्रॉग ये बोले कि जब मैं पानी में था और बिच्छू कोने में बैठा था और वो मेरे को डंक नहीं मार रहा था, तो वो पहले जैसा हो जाए। पहले जैसा का क्या मतलब है? वो तो मौका ही नहीं मिला डंक मारने का। देर इज नो पहले जैसा। हाँ जब मौका मिला तब डंक मारा ना। पहले जैसा का क्या मतलब? ओके। कभी पहले जैसा कुछ था ही नहीं। आप वो जब पहला मौका मिला तब डंक मारा। अब आप बोलो उससे पहले वो जैसा था वैसे हो जाए। अरे वो उससे पहले भी डंक मारने ओके वाला ही ओके। था, उसको मौका नहीं मिल रहा था। हाँ करेक्ट, मे बी। हाँ। हाँ, तो कौन से पहले जैसे पे जाना चाह रहे हो? हम्म, नहीं मैं मेरी तरफ से जो था 100% ट्रस्ट, इट्स विथ मी ओनली राइट, तो वो इट्स आपकी नॉट। तरफ से 100% ट्रस्ट इसलिए था हाँ क्योंकि आपको डंक नहीं पड़ा था। हाँ करेक्ट। तो तो पहले जैसा कुछ नहीं था ना, वो तो बस हुआ नहीं था एक्सीडेंट, दैट्स ऑल। देर इज नो पहले जैसा हियर। वो तो ओके। आप दूर थे, तो फिर दूर ही रहो ना, फिर पहले जैसा हो जाएगा तो दूर रहो।
दूर थे तभी तो पहले जैसा, तभी तो डंक नहीं पड़ा था, पास आए तो डंक पड़ा ना। हम्म। हाँ, तो पहले जैसा होने के लिए वापस दूर जाना पड़ेगा ना। राइट। यस, गॉट इट। हम्म, थैंक्स श्रद्धा। थैंक यू। अम, ठीक है, तो कैन यू टेल मी कि व्हाट डिड यू गेट बिफोर वी मूव टू द अदर पर्सन, जस्ट टू रैप अप दिस कॉन्वर्सेशन। क्या समझ एक्चुअली गए? मीन्स लाइक आपकी स्टोरी एंड ऑल, उसके उसके हिसाब से तो ये आ रहा है कि नो, यू शुड नॉट ट्रस्ट अगेन बिकॉज इट मे हैपन, सो बी इन योर ओन स्पेस, लाइक दैट, है ना? यानी जब आप दूर थे तब ऐसा नहीं हुआ था, एंड अगेन दूर इन द सेंस कि ऐसा कुछ मौका ही नहीं आया था, सो हम्म, बाय द टाइम मे भी हो सकता है ऐसे कुछ हुआ, मौका मिला। हम्म, हम्म। तो जो अरे। इंसान का जैसा, हाँ, जैसे जो जिसका, हम्म अगर वो, अगर हम यहाँ पे ट्रस्ट वाली बात, बेसिकली इफ यू से कि यू कैन ट्रस्ट हिम टू ब्रेक योर ट्रस्ट, बेसिकली यू कैन ट्रस्ट अ स्कॉर्पियन की द स्कॉर्पियन विल बाइट यू, नहीं, नहीं। राइट? तो यहाँ पे जो एक्चुअल हम जो मतलब जो जो पॉइंट पे हम आज डिस्कस करना चाह रहे थे, दैट इज मोर अबाउट कि जब कोई मिस्टेक करता है, हम्म हम्म, जैसे हमने हमने कई बार ये सिनारियोस सुने हैं लोगों से बात करते हुए हम्म कि हस्बैंड और वाइफ में हस्बैंड ने कुछ किया और फिर वाइफ का ट्रस्ट ब्रेक हुआ और हस्बैंड को रियलाइज, हस्बैंड ने सॉरी बोला एंड से कि अच्छा मैं हम्म आगे से ये नहीं करूंगा, ये हो गया, हम्म ठीक है, और हस्बैंड हम्म कर भी नहीं रहा, हम्म। बट वाइफ इज जस्ट नॉट एबल टू ट्रस्ट। हाँ। उसको ये लग रहा है कि कभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता यस। है, इट्स लाइक अ यस। टिकिंग टाइम बॉम्ब, जबकि करेक्ट। हो नहीं रहा है। करेक्ट करेक्ट। हो नहीं रहा है। यस। पर आपका सिनारियो अलग है, आपके सिनारियो में तो हो भी रहा है। बट तो हो, वो ट्रस्ट बार बार ब्रेक हो रहा है आपके सिनारियो में, तो है ना? हम्म। तो ये अलग हो गया सिचुएशन, ये सिचुएशन अलग इस तरह से होगी कि दूसरा इंसान बार बार अपना नेचर आपको दिखा रहा है, आप ही नहीं देख रहे हो। हम्म। ये अलग है सिनारियो। पहला वाला जो मैं सिनारियो बोल रहा हूँ वो अलग है, वो वैसा है कि अच्छा। हर इंसान से गलती होती है। हम्म तो किसी इंसान से कोई गलती हुई, उसने उसको रियलाइज किया, उसने सॉरी बोला, उसने वो गलती दोबारा रिपीट नहीं की, लेकिन फिर भी पार्टनर अटक चुका है उसमें। हाँ। पार्टनर को इट्स ये लग रहा है कि कभी भी हो सकती है, तो एग्जैक्टली। पार्टनर इज वो शक वाली बात है। हम्म। जो हम शक बोलते हैं ना, ये डाउट। वो शक है। आपके केस में शक का तो केस ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो बार बार हो ही रहा है, इसमें शक है ही नहीं, क्योंकि वो रिपीट ऑफेंडिंग है। तो वो तो वो तो दूसरा इंसान आपको अपना नेचर बार बार दिखा रहा है, आप देख नहीं रहे हो, और आप सोच रहे हो कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये ऐसा हो जाएगा, या ये ऐसा, वो अलग सी चीज बात है। Cool. ठीक है, तो एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? और और सर, ये भी मतलब लाइक हम लोग कभी कभी जानते हैं कि मतलब आपने जो अभी एक कहानी बताई वो बिच्छू और मेढक की, तो हम लोग जानते हैं कि बिच्छू को तो काटेगा ही, बट देयर कैन बी वन मोर रीजन, लाइक हम लोग कभी कभी ना सामने वाले पे इतना डिपेंड हो जाते हैं कि लाइक लॉट्स ऑफ रीजंस आर देयर, लाइक यूजुअली हमारे जो इंडियन सोसाइटी में कहते हैं ना कि बच्चे जो मदर है दे थिंक दैट बच्चों को फादर का पूरा जो एक सपोर्ट मिलना चाहिए, देश उनको उनका प्यार मिलना चाहिए, तो बच्चों की वजह से दे गेट डिपेंडेंट ऑन देयर हस्बैंड्स, एंड फिर उनको मालूम ही होता है कि यहाँ से धोखा मिलेगा, बट लेट्स एडजस्ट विद दैट। कैन दैट बी वन ऑफ द रीजन? Yeah, definitely. Codependency is one of the biggest reasons why people are stuck into toxic relationships. 100%.
सब कुछ दिखने के बाद भी हम लाइक वी व्हेन वी आर नॉट टेकिंग नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग एनी स्टेप्स, तो उसमें क्या होता है कि दूसरे इंसान की हिम्मत और बढ़ जाती है, हाँ जी। क्योंकि उसको पता है कि कुछ 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 होने वाला थोड़ी है। तो तो और ज्यादा उस इंसान की हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि उसको पता है कोई कॉन्सिक्वेंस कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, इफ हस्बैंड इज चीटिंग एंड ऑल दैट एंड ऑल दोस थिंग्स, मतलब हमने तो there was one scenario, we were talking to a couple, and and there was infidelity involved in that one. तो ये तो छोड़ो कि the husband is actually like feeling guilty about it or anything. He is openly saying मेरे तो सारे दोस्त करते हैं। हाँ जी। तो he was actually like telling कि what's the big deal, सभी तो करते हैं। तो there was forget about guilt or remorse or anything, he was feeling entitled to do it। तो अब हाँ जी। सोचो एंड कि इस सिनारियो में जिसमें द हस्बैंड कम्स फ्रॉम सच काइंड ऑफ एंटाइटलमेंट कि व्हाट्स द बिग डील, मेरे सारे फ्रेंड्स का अफेयर चल रहा है, एवरीवन इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दैट। तो और उस केस में अगर वाइफ कोई स्टेप नहीं लेती है हाँ जी। एंड शी स्टिल स्टक इन दिस, तो हस्बैंड को तो अभी फ्री लाइसेंस मिल गया ना, उसने तो देख लिया कि इसका कोई कॉन्सिक्वेंस है ही नहीं। हाँ जी। तो दिस इज गोइंग टू बिकम इवन मोर टॉक्सिक। तो अब पहले तो शायद वो फिर भी शायद कुछ थोड़ा छुपा के या कुछ ऐसे करके कर रहा होगा, कुछ कुछ लिहाज होगा। अब तो उसने ओपनली बोल दिया, अब तो वो खुलेआम करेगा, क्योंकि नाउ द वाइफ हैज गॉट नो गट्स टू स्टैंड अप और डू एनीथिंग अबाउट इट। अब तो पूरा लाइसेंस मिल गया उसको। अब तो उसने खुला खुला बोल भी दिया, अब तो वो एकदम डंके की चोट पे करेगा कि मैं तो बता रखा है हाँ तुमको। जी। बट तो सर अब उसका भी हाउ, एक अफेक्ट उनके मतलब बच्चों पे भी आता है ना। इन फ्यूचर दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट देयर लाइफ पार्टनर्स। मतलब मतलब शादी हो गई तो वो नहीं कर पाते ट्रस्ट, और अगर ढूंढ रहे आपको होते हैं लगता है देन दे कि ट्राई जिस टू बी इंसान वेरी। की आपको लगता है जिस इंसान की मैं बात कर रहा हूं, ही वुड बी मैच्योर इनफ टू थिंक टू दैट लेवल? नो, नॉट What एट you are ऑल। saying is correct. What you are saying is correct. I am not denying that. But then we are expecting maturity from people who are just not capable of giving such kind of maturity. ये हाँ लॉजिक जी। नहीं चलते हैं इन लोगों के आगे, हाँ जी। क्योंकि ये बातें बताने वाली नहीं है। ये कोई मैच्योर एडल्ट, अ फादर वुड ऑलरेडी नो दिस। अगर ये बताने हाँ की जी। जरूरत पड़ रही है, तो दैट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन ऑफ इमेच्योरिटी। हाँ जी। हाँ। तो मेरा मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये कम्युनिकेशन से रिजॉल्व नहीं होती हैं। दिस इज हाँ नॉट अ जी। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। दिस इज नॉट अबाउट कि आप उस इंसान को कोई नया ज्ञान देके उनकी आंखें खोल दोगे, कि अचानक से उनको आपने बताया कि यू आर अ फादर एंड दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर किड्स एज वेल, एंड ही डिडंट रियलाइज सो फार कि अच्छा आई वाज अ फादर ऑल्सो, तो आई वाज डूइंग ऑल दिस। तो ऐसा नहीं कि ये ज्ञान देके उनकी आप आंखें खोल दोगे। These people are doing these things knowingly, deliberately, knowing everything. अब क्या करोगे? ये ज्ञान की और कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं। And in fact, this person I'm talking about, he is a father. They have a child. So आपको लगता है कि हम एक सेशन में उसको ये बताते कि यू आर अ फादर एंड दिस इज गोइंग टू हैव बैड इम्पैक्ट ऑन योर किड्स एंड ऑल दैट, और अचानक से उसको की बत्ती जल जाती इस ये सुन के, और वो अचानक से लाइन पे आ जाता? Upasana, you're saying something? I am not able to hear. Okay. Anybody else wants to say or add to this? So this is an open conversation, guys, and unless there is anybody who wants to talk, तो क्या है कि कुछ ऐसा ऐसा हमारे पास कोई presentation तो है नहीं।
सो मेरे पास तो कुछ है नहीं और बात करने के लिए। अनामिका, if there is nothing, then we can wrap up the call also. Okay, Mm, Upasana, no problem. Nothing from my side as well, Akarna. Cool then. If any of you wish to, say anything or share your experience or talk about anything, then you all are welcome to do the same in the Conscious Relationship Circles app space. And we'll see you guys then on Tuesday with another topic, another open discussion. Thank you so much for joining, everyone. Okay. Thanks, guys. Good night. Thank you, ma'am. Thank you all.